मानसिक रूप के उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है और भारत को पूर्ण रूप से आतंकवाद से मुक्ति का उसमें एक एहसास हो रहा है और वो सपना भी सिद्ध होके रहेगा। हम 75 साल तक अंग्रेजों की दी हुई दंड संहिता में जीते रहे हैं। हम गर्व से कहेंगे देश को, नई पीढ़ी को कहेंगे, आप अपने पोते पोती को कह सकेंगे गर्व से कि देश 75 साल भले दंड संहिता में जिया, लेकिन अब आने वाली पीढ़ी न्याय संहिता में जिए। 25 ஆண்டுகளாக ஆங்கிலேயர்கள் தந்த அதே அந்த குற்ற சட்டங்களை நாம் பின்பற்றி வந்தோம். ஆனால் இப்போது நீங்கள் உங்கள் வருங்கால சந்ததியினருக்கு கர்வத்தோடு சொல்லலாம், 17வது மக்களவை இந்த புதிய குற்ற சட்டங்களை எல்லாம் நிறைவேற்றி இருக்கிறது என்று பெருமையோடு சொல்லலாம். एक ऐसे काम से हुआ है जो भारत की मूलभूत मान्यताओं को बल देता है और वो नारी शक्ति बंधन अधिनियम. இந்த அவையிலே நிறைவேற்றப்பட்ட பெண்கள் இடஒதுக்கீடு மசோதா, பெண்களுக்கு சக்தி அளிக்கின்ற அந்த இடஒதுக்கீடு மசோதா, तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम நாட்டின் பழங்கால கலாச்சார பெருமைகளை மீண்டும் சொல்லுகிறது. लेकिन दूरगामी निर्णय करने वाला सत्र था. इस नए सदन की पवित्रता का एहसास उसी पल शुरू हो गया था जो हम लोगों को एक नई शक्ति देने वाला है और उसी का परिणाम है कि आने वाले समय में जब बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ हमारी माताएं बहनें बैठी होगी, இந்த சட்டத்தின் விளைவாக வருங்காலத்தில் இந்த அவையிலே அதிக எண்ணிக்கையில் தாய்மார்களும் சகோதரிகளும் வந்து அமர்வார்கள் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. कितने उतार चढ़ाव से हमारी मुस्लिम बहनें इंतजार कर रही थी. अदालतों ने उनके पक्ष में निर्णय किए थे, लेकिन वो हक उनको प्राप्त नहीं हो रहा था. பல ஆண்டுகளாக நம்முடைய இஸ்லாமிய சகோதரிகள் காத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். अप्रकट रूप से कहे, लेकिन 3 तलाक से मुक्ति का बहुत நீதிமன்றங்கள் அவர்களுக்கு சார்பாக தீர்ப்பு கொடுத்தும் இது நிறைவேறவில்லை. ஆனால் நாம் நிறைவேற்றிய அந்த 3 தலாக் விரோதமான அந்த சட்டத்தின் காரணமாக அவர்கள் எல்லாம் மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறார்கள். लेकिन कभी न कभी तो कहेंगे कि हाँ, इन बेटियों को न्याय देने का काम भी करने के समय हम वहाँ मौजूद. पीढ़ियों से होता यह न्याय हमने पूरा किया है और वो बहनें हमें आशीर्वाद दे रही है. आदरणीय இந்த பெண்மணிகள் எங்களுக்கு நிச்சயமாக தங்களுடைய ஆசைகளை வழங்குவார்கள். हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. राजनीति की गहमा गहमी अपनी जगह पे है. राजनीतिक क्षेत्र के लोगों की अपनी आशा आकांक्षा अपनी जगह पे है, लेकिन देश की अपेक्षा, देश की आकांक्षा, देश का सपना, देश का संकल्प ये बन चुका है. 25 साल वो हैं जो देश इच्छित परिणाम प्राप्त करके रहेगा. நம் அனைவரின் கட்சிகளின் நிலை, எண்ணங்கள் வேறு வேறாக இருக்கலாம். ஆனால் நாட்டு மக்களின் எண்ணம், நாட்டை வளர்ச்சியடைந்த நாடாக மாற்றுவது என்கின்ற அந்த எண்ணம் மக்கள் மனதிலே நிலை பெற்றுவிட்டது. पहले लोगों को सामर्थ्य नजर नहीं आया था. चाहे स्वदेशी आंदोलन हो, चाहे सत्याग्रह की परंपरा हो, चाहे नमक का सत्याग्रह हो, उस समय तो घटनाएं छोटी लगती थी. लेकिन 1947 वो 25 साल का कालखंड, उसने देश के अंदर वो जज्बा पैदा कर दिया था. हर व्यक्ति के दिल में वो जज्बा पैदा कर दिया था कि अब तो आज़ाद होकर रहना है. मैं आज देख रहा हूँ कि देश में वो जज्बा पैदा हुआ है. சுதந்திர போராட்ட காலத்தில் நடந்த சுதந்திர போராட்டங்கள், உப்பு சத்தியாகிரகம் போன்றவை அப்போதெல்லாம் ஒரு சாதாரண விஷயமாக இருக்கலாம். ஆனால் சுதந்திரம் அடைகின்ற அந்த 25 ஆண்டு காலத்தில் அது மிகச்சிறந்த விஷயமாக மாறிவிட்டது. அதே போலவே இப்போது மக்கள் மனதிலே வளர்ச்சியடைகின்ற பாரதம் என்பதுதான் மிக முக்கியமான விஷயமாக இருக்கிறது. எனவே அடுத்த 25 ஆண்டுகளில் வளர்ச்சியடைந்த நாடாக இந்தியா மாறும் என்பதில் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது.
और जो जुड़ भी नहीं पाएंगे और जीवित होंगे तो फल तो जरूर खाएंगे, ये मेरा। நம்மில் பலர் அந்த சமயத்திலே இல்லாமல் போகலாம், இருப்பினும் இருப்பவர்கள் அனைவரும் அதனுடைய பலனை அனுபவிப்பார்கள். 5 वर्ष युवाओं के लिए बहुत ही ऐतिहासिक कानून भी बने हैं. व्यवस्था में இந்த 5 पारदर्शिता ஆண்டுகள் लाकर இளைஞர்களுக்கு युवाओं को மிக முக்கியமான சட்டங்களை நிறைவேற்றுகின்ற ஆண்டாக இருந்திருக்கிறது. पेपर लीक जैसी समस्या जो हमारे युवाओं को चिंतित करती थी, हमने बहुत ही कठोर कानून बनाया है ताकि उनके मन में जो सवाल या निशान था, தேர்வுகளின் போது நடக்கின்ற अब उनको முறைகேடுகளை व्यवस्था के प्रति उनका गुस्सा எதிர்த்து நாங்கள் கடுமையான சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறோம். எனவே அவர்களுக்கு எந்த விதமான கவலையும் இல்லாமல் அவர்கள் के मन के भाव को தேர்வுகளை எதிர்கொள்ளலாம். बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय किया है. आदरणीय अध्यक्ष जी, ये बात सही है कि कोई भी मानव जात अनुसंधान के बिना आगे नहीं बढ़ सकती है. எந்த उसको ஒரு மனித नित्य ஜாதியும் परिवर्तन के लिए अनुसंधान ஆய்வுகள் செய்யாமல் வளர்த்திட முடியாது. मानव जात का लाखों साल का इतिहास गवाह है कि हर काल में मानव अनुसंधान होते जातिயின் रहे, जीवन बढ़ता லட்சம் चला गया. ஆண்டுகளுடைய சாட்சியாக இந்த ஆய்வுகள் எல்லாம் இருந்திருக்கின்றன. इस सदन ने विधिवत रूप से कानूनी व्यवस्था खड़ी करके अनुसंधान को प्रोत्साहन देने का बहुत இந்த அவையிலே ஆய்வுகளை உற்சாகப்படுத்துவதற்கான சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது. आमतौर पर रोजमर्रा की राजनीति की चर्चा का विषय बन नहीं पता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत दूरगामी होने वाले हैं ஆய்வுகள் और इतना बड़ा महत्व சாதாரணமாக இந்த அவையிலே விவாதிக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக இருப்பதில்லை. ஆனால் அதனுடைய விளைவு மிகவும் அருமையாக இருக்கிறது. व्यवस्था के कारण दुनिया का रिसर्च और का एक हब हमारा देश बन सकता है. हमारे देश की युवा के टैलेंट ऐसी है, आज भी दुनिया की बहुत कंपनियां ऐसी हैं जिनके इनोवेशन के काम आज भी भारत में हो रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा हब बनेगा, यह मेरा पूरा विश्वास है. आदरणीय अध्यक्ष जी, 21वीं सदी में हमारी बेसिक नीड्स पूरी तरह बदल रही है. कल तक जिसका कोई मूल्य नहीं था, कोई ध्यान नहीं था, वो आने वाले 21ஆம் நூற்றாண்டில் நம்முடைய அடிப்படை தேவைகள் சற்று மாறி இருக்கின்றன. जैसे डेटा पूरी दुनिया में चर्चा है. डेटा का सामर्थ्य क्या होता है. हमने डेटा प्रोटेक्शन बिल ला करके पूरी குறிப்பாக भावी पीढ़ी को सुरक्षित कर दिया है. இணைய வழியில் நாம் கொடுக்கின்ற டேட்டா शस्त्र हमने उसके हाथ में दिया है, जिसके आधार पर वो अपने भविष्य को बनाने के लिए इसका सही इस्तेमाल भी நாம் करेंगे. குறைந்த விலையில் டேட்டா அனைவருக்கும் தருகிறோம். இதனால் இளைஞர்கள் இந்த एक्ट சக்தியை கொண்டு உலக அளவில் பெரும் சாதனைகளை செய்ய முடியும். और दुनिया के लोगों को भी भारत के इस एक्ट के प्रति रुचि बनी हुई है. दुनिया के देश उसका अध्ययन करते हैं, अपने अपना नई नई व्यवस्था अनुकूल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं. और डाटा का उपयोग कैसे हो उसकी भी उसमें गाइडलाइंस है. अनेक प्रकार से प्रोटेक्शन का पूरा प्रबंध करते हुए इसका सामर्थ्य कैसे आए, டேட்டாவை எப்படி பாதுகாப்பது என்பது பற்றியும் அந்த புதிய டேட்டா சட்டத்தில் நாங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறோம். भारत इस शक्ति के इसलिए विशेष है क्योंकि विविधताओं से भरा हुआ देश है. हमारे पास जिस प्रकार की जानकारी और हमारे साथ जुड़े हुआ डेटा जो जनरेट होता है, सिर्फ हमारा रेलवे पैसेंजर्स का डेटा कोई देख ले, दुनिया के लिए बहुत बड़ा संशोधन का विषय बन सकता है. उसकी ताकत को हमने நம்மிடத்திலே पहचान உருவாகின்ற करके அந்த इस புள்ளி कानूनी விவரங்கள் व्यवस्था को दिया है. ஒரு ரயிலில் பயணிக்கின்ற பயணிகளின் புள்ளி விவரங்களாக இருக்கட்டும், அது உலகத்தில் உள்ள மக்களுக்கு மிகவும் முக்கியமான விஷயம். இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை பாதுகாப்பதற்காக இந்த சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது. समुद्री शक्ति और स्पेस की शक्ति और साइबर की शक्ति, ये ऐसी त्रिविध शक्तियों का मुकाबला करने की கடலில் உள்ள आवश्यकता வளம், पड़ी है. விண்ணில் உள்ள வளம், சைபர் உலகத்தில் உள்ள வளம், இந்த மூன்றையும் பயன்படுத்துகின்ற வகையிலே நாம் பணியாற்றி இருக்கிறோம். इन क्षेत्रों में हमें सकारात्मक सामर्थ्य भी पैदा करना है और नकारात्मक शक्तियों से अपने आप को हर चुनौतियों को चुनौती लेने का सामर्थ्य भी இந்த बनाना है. விஷயத்தில் நேர்மறையான स्पेस से जुड़े திறன்களை நாம் வளர்க்க வேண்டும், எதிர்மறையான திறன்களை நாம் ஒடுக்க வேண்டும். दृष्टि के साथ
செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.